नमो लोये सौहरिहन्ताणं नमो लोये सौहृदानं नमो लोये सौभागिर्यानं नमो लोये सौज्यायानं नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदमोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलं भगवान् मङ्गलं गौतमोऽग्नि मङ्गलं कुन्कुण्डारि विजेन्द्रमोसुमङ्गलं नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः कृपावनिदाता। કળશ અમૃત ભગવાન અમૃતચંદ્રાચાર્ય રચિત કળશ અમૃતનો સ્વાધ્યાય આપણે કરી રહ્યા છીએ. એમાં મોક્ષ અધિકાર ચાલે છે. એમાં કળશ 183 નો સ્વાધ્યાય આપણે પૂરો કર્યો છે. હવે આજે કળશ 184 નો સ્વાધ્યાય શરૂ કરીએ છીએ. સમયસારમાં 183માં કળશ પછીથી અમૃતચંદ્રાચાર્ય ભગવાને કળશ 184 કહ્યો છે તે આગળના કથનની સૂચના રૂપે કહેવામાં આવ્યો છે. એટલે કે હવે પછી જે કુંકુંદાચાર્ય ભગવાનની ગાથાઓ આવવાની છે એની સૂચના રૂપે આ 184મો કળશ કહેવામાં આવ્યો છે. એના શ્લોકાર્થમાં અહીંયા કહે છે કે ચૈતન્યનો એટલે આત્માનો તો એક ચિન્મય જ ભાવ છે. ચૈતન્યનો એટલે આત્માનો તો એક ચિન્મય જ ભાવ છે. જે બીજા ભાવો છે તે ખરેખર પરના ભાવો છે, એટલે કે આત્માના ભાવ નથી. માટે એક ચિન્મય ભાવ જ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે. બીજા ભાવો સર્વથા છોડવા યોગ્ય છે. બહુ ટૂંકમાં વાત કરી દીધી આત્માના અનંત ગુણ, પણ એમાં કોઈ એવો ગુણ નથી કે જેને કારણે આત્માને બીજો કોઈ ભાવ થાય. એનો તો એક માત્ર ચિન્મય ભાવ છે, જ્ઞાનમય ભાવ જ છે. અને એ સિવાય બીજા બધા ભાવ જે છે તે આત્માના નથી, એટલે એને છોડવા યોગ્ય કયા. કળશ અમૃતની અંદર ખંડાન્વય સહિત અર્થ કરતા પંડિત રાજમલજી કહે છે કે જીવ દ્રવ્યનો ચેતના માત્ર એવો સ્વભાવ છે. 183માં કળશની અંદર ચેતનાની વાત કરીને કહ્યું કે એ ચેતના બે પ્રકારે છે, દર્શન ચેતના, જ્ઞાન ચેતના એમ કહ્યું. સામાન્ય અને વિશેષ રૂપ છે. અને એ જ વાતને અહીંયા આગળ લીધી છે. એટલે કહે છે કે જીવ દ્રવ્યનો ચેતના માત્ર એવો સ્વભાવ છે, નિશ્ચયથી એમ જ છે, અન્યથા નથી, બીજી રીતે નથી. કેવો છે ચેતના માત્ર ભાવ? નિર્વિકલ્પ છે, નિર્ભેદ છે, સર્વથા શુદ્ધ છે. નિર્વિકલ્પ છે, નિર્ભેદ છે, સર્વથા શુદ્ધ છે. એમાં કોઈ ભેદ પણ નથી, કોઈ વિકલ્પ પણ નથી. એ શુદ્ધ છે, સર્વથા શુદ્ધ છે. એવો ચેતના માત્ર ભાવ નિશ્ચયથી શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ સાથે અણમળતા છે. જે દ્રવ્ય કર્મ, ભાવ કર્મ, નો કર્મ સંબંધી પરિણામો સમસ્ત પૂતગલ કર્મના છે, જીવના નથી. તે કારણથી શુદ્ધ ચેતના માત્ર છે જે સ્વભાવ તે જીવનું સ્વરૂપ છે એવો અનુભવ કરવા યોગ્ય છે. ચેતના માત્ર ભાવ નિર્વિકલ્પ છે, નિર્ભેદ છે, સર્વથા શુદ્ધ છે. અને એ પછીથી અહીંયા અન્ય ભાવ જે છે તે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય નથી, એના નથી એમ જ્યારે કહેવું છે તો એમ કે છે કે નિશ્ચયથી શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ સાથે એ ભાવ એટલે કે દ્રવ્ય કર્મ, ભાવ કર્મ, નો કર્મ સંબંધીના જે પરિણામો જે થઈ રહ્યા છે એવા ભાવ એ ચૈતન્ય સ્વરૂપ સાથે અણમળતા છે. એની સાથે મળતા ભાવ નથી. એ બધા પરિણામો ચેતન સ્વરૂપ ભગવાન આત્માને મળતા ભાવ નથી, એના નથી, એને અનુસરીને પણ નથી. એ સમસ્ત પૂતગલ કર્મના છે, જીવના નથી. અને તે કારણથી શુદ્ધ ચેતના માત્ર છે જે સ્વભાવ તે જીવનું સ્વરૂપ છે એવો અનુભવ કરવા યોગ્ય છે. આની સાથે અણમળતા છે જે દ્રવ્ય કર્મ, ભાવ કર્મ, નો કર્મ સ્વભાવ તે સર્વથા પ્રકારે જીવનું સ્વરૂપ નથી એવો અનુભવ કરવા યોગ્ય છે.
અને એને એમ જાણીને છોડવા યોગ્ય છે. એટલે કે છે કે આવો અનુભવ સમ્યક્ત્વ છે. સમ્યક્ત્વ ગુણ મોક્ષનું કારણ છે. તો એ રીતે આ 184મી ગાથા એટલે કે 184મો કળશ છે. આ કળશ ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાજી સ્વામીએ જે વિસ્તાર કર્યો છે તે હવે આપણે લઈએ છીએ. કળશ પ્રવચન ભાગ 5મો. એના પાના નંબર 515 ઉપર 184મો કળશ છે ત્યાંથી શરૂ કરીને આપણે લઈએ છીએ. પહેલેથી શરૂ કરીને લઈએ છીએ 184 કળશ. એક ચિત ચિન્મયમ એવ ભાવો. હવે પર છે જુદા છે ટૂંકું કરે છે. ભાવા પરે કિલ્લતે પરેશામ ગ્રાહ્ય તત્ચિન્મયમ એવ ભાવો ભાવા પરે સર્વતો એવ ચેતનાથી સિદ્ધ કરીને હવે કે છે ચિત ચિન્મયમ ભાવ એવા. ચિત એટલે જીવદ્રવ્ય છે ને. જીવદ્રવ્ય ચિન્મય ચેતના માત્ર એવો ભાવ નામ સ્વભાવ છે. બસ એ તો એનો ચેતના માત્ર સ્વભાવ છે. સ્વભાવવાન જીવદ્રવ્ય એનો ચેતના માત્ર સ્વભાવ છે. જાણવું દેખવું એ ચેતના એનો સ્વભાવ છે. કોઈ દયાદાન વ્રત ભક્તિ પૂજા ભક્તિ નો ભાવ એનો સ્વભાવ નથી. આવો આવે એટલે એમ કે બધા ચારિત્રને ઉડાડે પણ એ ચારિત્ર એને ન કહેવાય ભાઈ. સમ્યક દર્શન વિનાના વ્રત તપ એ બધા બાળ વ્રત ને બાળ તપ થયા છે ને. મૂર્ખાય ભરેલા વ્રત છે પ્રભુ એ નથી ભાઈ. તારા હિતની વાતો છે. તારું અહિત કેમ થઈ રહ્યું છે એનું સ્પષ્ટીકરણ થતા હિતની વાત છે. એને મારી નિંદા છે એમ ન માનવું જોઈએ ભાઈ. પ્રભુ તારી વાત આપો છે ને. તારી પ્રભુતા ચેતના મયને લઈને છે. તારી પ્રભુતા કોઈ દયાદાનના વ્રતના વિક્રમને લઈને નથી. તારી પ્રભુતાની વાત કરતા તને એમ થઈ જાય અરે રે તારે અમારા વ્રત તપને તો હવે ખોટા પડે છે. અમારી નિંદા એમ નથી. દુઃખનો નિષેધ છે, પાપનો નિષેધ છે. એ આખું પાપ છે. ચિન્મય ભાવ આવ્યો ને જુઓ. ચિત જીવદ્રવ્ય ચિન્મય ચિન્હભાવ એમ ન કહ્યું. ચેતના માત્ર ભગવાન જાણક દેખન માત્ર. એ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા સ્વભાવ માત્ર પ્રભુ છે. ચેતન માત્ર એવો સ્વભાવ છે. એ નિશ્ચયથી એમ જ છે. એ શબ્દ આવ્યો ને નિશ્ચયથી એમ જ છે.
भगवान आत्मा चेतना मात्र, चित चेतना मात्र, चित चेतना मात्र, जीव चेतना मात्र, સ્વભાવ માત્ર જ છે. ત્રિકાળ એનો સ્વભાવ ચેતના માત્ર સ્વભાવ છે. એમ જ છે, એમ નહીં કરે ને, નિશ્ચયથી એમ જ છે, અન્યથા નથી. એવનો અસ્તિ કરીને નાસ્તી કરી. એવ એટલે નિશ્ચય, બીજી રીતે નથી એમાંથી કાઢ્યું. એ અનેકાંત કાઢ્યું. સમજાણું કાંઈ ચેતા માત્ર એક નિર્વિકલ્પ છે. કેવો છે ચેતના માત્ર ભાવ? એ જોયું પાછું ઓલા બે પ્રકાર તેનું સ્વરૂપ છે, પણ છે પોતે નિર્વિકલ્પ રાગ વિનાની ચીજ છે. બે પણ છે માટે રાગ છે એમાં, એમ એ તો એનું સ્વરૂપ જ છે. સમજાણું કાંઈ? કેવો છે ચેતના માત્ર ભાવ? એક નિર્વિકલ્પ છે, રાગ વિનાનો નિર્ભેદ નિર્વિકલ્પ છે. નિર્ભેદ છે, ભેદ નથી એમાં. બે પણું છે માટે ત્યાં રાગનો ભેદ છે એમ નથી. સર્વથા શુદ્ધ છે ચેતના. જ્ઞાતા દ્રષ્ટા સ્વભાવ એ જીવદ્રવ એ નિશ્ચય છે, અને તે નિર્વિકલ્પ છે, અને તે નિર્ભેદ છે, એમાં ભેદ નથી. અને તે સર્વથા શુદ્ધ છે, સર્વથા શુદ્ધ છે. ભગવાન ચેતના દ્રષ્ટા જ્ઞાતા સ્વભાવ એ તો સર્વથા શુદ્ધ છે. કિલ એ પરિભાવાથી પરિશ્રમ, કિલ પણ નિશ્ચયથી એ પરિભાવા શુદ્ધ ચૈતન સ્વરૂપ સાથે, શુદ્ધ ચૈતન સ્વરૂપ સાથે અણમળતા. એ વિકલ્પો રાગ આદિ છે શુદ્ધ ચૈતન સાથે મળતા નથી, અણમળતા છે. અણમળતા ભાવને સાધન કહેવું અને આને સાજ કહેવું ફેર મોટો છે. પણ શું થાય, ગમે તેમ થાવ, વસ્તુ તો આ છે. ભલે એને માનનાર થોડા રહે, અરે બીજા નરે માને એથી વસ્તુ તો આ છે. આનું નામ દિગંબર ધર્મ છે. સમજાણું કાંઈ? એ પરિશ્રમ ભાવા શુદ્ધ ચૈતન સ્વરૂપની સાથે અણમળતા. બે વાર દિશે અણમળતા. કોણ અણમળતા? એક તો જળ કર્મ, શુદ્ધ ચૈતન સાથે અણમળતા જળ કર્મ, એની હારે મેળ ખાતો નથી. ભાવ કર્મ, શુભ શુભ વિકારના પરિણામ દયાદાનના એ અણમળતા ભાવ શુદ્ધ ચેતના સાથે એની હારે મેળ ખાતો નથી. શુદ્ધ ચેતના માત્ર સ્વભાવની સાથે એ શુભ શુભ ભાવ મેળ ખાતો નથી, અણમળતા ભાવ છે. આવી વાત છે. નો કર્મ શરીર,
દૈવ કર્મ, ભાવ કર્મ, નો કર્મ સંબંધી પરિણામો, પાછા પરિણામો ત્રણે તે પરિશ્રમ, તે સમસ્ત પૂતગળ કર્મના છે. એ વ્યવહાર રત્નત્રયનો રાગ એ પૂતગળ કર્મના છે. ગજબ છે ને. ભગવાનના નથી. હા હા આવું છે. વસ્તુ બહુ ઓલી થઈ ગઈ. દૈવ કર્મ, ભાવ કર્મ, નો કર્મ સંબંધી પરિણામો થયા ને. દયાદાન, વ્રત, ભક્તિ આદિના પરિણામો પણ ભાવ કર્મના, હા 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 પૂતગળ કર્મના છે. તો એમ કીધું ભાઈ, આના નથી તે આના છે. ભગવાનના તો જ્ઞાતા દ્રષ્ટા ચેતના દ્રષ્ટન સ્વભાવ છે ને. એની હારી આ રાગ આદિ અણમળતા છે. આને ચેતન કેવો તો એને પૂતગળ કેવા. અણમળતા છે એટલે ચેતન હારી મળતા નથી. ચેતના હારે મેળ ખાતા નથી તેને અચેતન પૂતગળ કેવા. આ બધા વાંધા ઉઠે છે. રંજનજી, એ તમારા સંપ્રદાયમાંથી આ ઉઠાડે બધું વાંધો. હા આવું વસ્તુનું સ્વરૂપ જ આવું છે ને ત્યાં. હા હા જ્ઞાનક લેખન ચેતન સ્વભાવ એની હારે વિકલ્પ જે ઉઠે જાય તો ભગવાનની ભક્તિનો એ અણમોળતા પૂતગળ કર્મ છે. હા હા ભક્તિ વાળાને આખવું પડે. દેવગુરુની ભક્તિથી કલ્યાણ થાય એને આખવું પડે. શું વસ્તુની મર્યાદા જ આ છે. હા 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 સ્વભાવની સાથે જાણક દેખન સ્વભાવ, ઠેકાળી ચેતન સ્વભાવ, એની સાથે રાગ આદિ. શરીર તો નો કર્મ છે, કર્મ તો અજીવ છે, પણ આ તો દયાદાનના પરિણામ પણ પૂતગળ કર્મ છે એમ કીધું છે. પૂતગળ કર્મના પરિણામ છે મેં કીધું નથી. હા તો એ પૂતગળ કર્મ ના છે. હા હા જીવના નથી. અસ્થિ નાસ્તી કરી આ અનેકાંત છે. એટલે એમ કે છે કે વ્યવહારથી પણ થાય ને નિશ્ચયથી થાય અનેકાંત છે. અહીં કે છે કે પોતાના સ્વભાવથી થાય ને પરથી ન થાય એ અનેકાંત છે. હા 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 આવું છે. ન રૂચે ઉઠે ન એ જીવના નથી. હા 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 તો શું કરવું વિશેષ કે છે. हाँ कलश टीका चलती है. सिद्धांत जो सत्य है उसकी टीका हो गई. उसका कलश है. कलश एम देरासर ऊपर कलश होता है ऐसा कलश है. सार 7 चीजें सार 184. एक चिन्मयम एव भावो भावापरे किलते परेशान ग्राह्य सचिन्मयम एव भावो भावापरे सर्वत एव या चित चिन्मयम भाव एव. क्या कहते हैं कि जो चित नाम जीव पदार्थ है, वस्तु जीव द्रव्य है, तत्व वो चिन्मय है.
ज्ञानमय चैतन्य प्रज्ञा ब्रह्म जीव वस्तु जो है या देह से भिन्न, हाँ तो जड़ है, उसका जानने वाला जड़ से भिन्न है। ये चित्त वस्तु उसका स्वभाव कायमी असली ज्ञान स्वभाव है, प्रज्ञा स्वभाव है, जानना देखना स्वभाव है। और आनंद स्वभाव उसका ज्ञान में देखना स्वभाव के साथ अनिंद्रिय आनंद का उसका मूल स्वभाव है। सूक्ष्म बातें भगवान हिंदी चलते आते। चित जीव द्रव्य, जीव वस्तु, जीव पदार्थ देह से भिन्न, ये चेतना मात्र ऐसा स्वभाव है। उसका स्वभाव तो जानना देखना ऐसा स्वभाव, और अतीन्द्रिय आनंद उसका स्वभाव, ये आत्मा है। एक कैसा है चेतना मात्र भाव है ना, निश्चय से ऐसा ही है, अन्यथा नहीं। क्या कहते हैं? भगवान आत्मा ये चैतन्य स्वभाव ही है, अन्यथा नहीं, अन्य नहीं। ये जानन देखन की मूर्ति प्रभु, ज्ञान की मूर्ति, ज्ञान का स्वरूप ने ज्ञान स्वभाव का पिंड प्रभु आत्मा है। चेतना मात्र भाव है, निर्विकल्प है। ये वस्तु में भेद नहीं। पुण्य पाप दया दान काम क्रोध का विकल्प है, वो तो उसमें है ही नहीं। पर वो आत्मा और चेतन स्वभाव ऐसा भेद भी नहीं। ये चेतन स्वभाव मय भगवान आत्मा वो अभेद निर्भेद है। भाषा समझ में आया? भगवान आत्मा, आत्मा को ही भगवान कहते हैं। क्योंकि भगवान दो संक्षिप्त शब्द है। भग की व्याख्या ऐसा है, ज्ञान और आनंद जिसकी लक्ष्मी है। भग का अर्थ लक्ष्मी होती है, तो जिसकी लक्ष्मी ज्ञान और आनंद, भग लक्ष्मी ज्ञान में आनंद वान, ये ज्ञान में आनंद जिसका रूप है, जिसका वान है। नहीं कहते कि थोड़ा वान है, काला वान है शरीर का, ऐसे भगवान आत्मा ज्ञान और आनंद उसकी लक्ष्मी, उसका स्वरूप भगवान, उसका ही वान स्वरूप है। अब बीच में जो दया दान व्रत भक्ति काम क्रोध का विकल्प जी वृत्तियां उठती है, ये सब विकार है, दोष है, पर है। ऐसा आत्मा का अंतर में दृष्टि करके अनुभव करना, तब अंतिन्द्रिय आनंद का स्वाद आना, उसका नाम धर्म की प्रथम शुरुआत कहने में आती है। समझ में आया? भगवान चिन्मय वस्तु, उसके पुण्य दया दान व्रत भक्ति तप, क्या करुणा कोमलता पर की सेवा करना के भाव, सब राग विकार है। ये बेकार है, ये अपनी चीज नहीं, ये अपने में है नहीं। विकृत भाव नया उत्पन्न किया है, ये उपाधि यानी दोष है। उससे बिन भगवान आत्मा निर्विकल्प है।
ચેતનમય જ્ઞાનમય જેમ શક્કર મીઠાશમય જેમ अफीण कड़वाशमय कड़वाश कहते हैं ऐसे भगवान चीन ज्ञानमय जानन स्वभाव प्रज्ञा ब्रह्म स्वरूप है। प्रज्ञा ने ब्रह्म नाम आनंद ये स्वरूप की अंतर में दृष्टि हो तब आत्मा का अस्तित्व जितना है इतना प्रतीत में आते हैं तब उसको सम्यक सत्य का स्वीकार किया ऐसे कहने में आता है। समझ में आया? हाँ 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 हाँ। निर्विकल्प है, निर्भेद है? भेद नहीं, भेद नहीं ना अर्थ ये चीज जो है उसमें आत्मा ने आनंद न ज्ञान ऐसा भेद नहीं, ये आनंद ने ज्ञान मय वस्तु है। सूक्ष्म बात है भगवान, समझ में आया? निर्भेद है, सर्वथा शुद्ध है? शुद्ध चैतन घन पवित्रता पिंड है ये तो है। हाँ हाँ, जेम शक्कर मिठास का पिंड है जैसे शक्कर कंद होता है ना, वो समझते हैं डॉक्टर, वो शकरकंद होता है समझते? शकरकंद, शक्करिया हमारे कहते हैं शकरकंद, वो शिवरात्रि को खाते हैं ना। तो ऊपर के जो लाल साल है ये न देखो तो सारी चीज शकरकंद साकर की मिठास का पिंड है। शकरकंद कहते हैं, शकरकंद, शक्कर नाम साकर की मिठास का वो पिंड है। ये लाल साल न देखो तो ऐसे आत्मा में दया दान व्रत भक्ति काम क्रोध का विकल्प जो राग है तो लाल छाल है। उससे अंदर भिन्न शकरकंद जैम साकर की मिठास का पिंड है, ऐसे आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का पिंड है। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? हाँ चीज कभी अनंत काल में सुनी नहीं, समझी नहीं। पशु में अवतार अनंत किया, मनुष्य अवतार अनंत हुआ, मनुष्य मर के पशु अनंत बेर हुआ, पशु होकर नरक में अनंत बेर गई, नीचे नरक है एक, बहुत हिंसा मांस दारू खाते हैं पीता है। अच्छा, ये प्राणी को नीचे नरक गति एक है, जैसी मनुष्य गति है पशु गति है ऐसे एक नरक गति नीचे है। बस लॉजिक थी, बड़ी युक्ति सिद्ध होता है और बदू सिद्ध करने जाए तो चले, बात चले नहीं है। तो अनंत बेर नरक में भी गई, अपनी चीज के आनंद कंद प्रभु क्या है उसका अनुभव, उसके अनुसरी के होना, आनंद में ज्ञान के अनुसर के होना, ऐसा अनुभव बिना उसने पशु ने नरक ने त्रियंत ने मनुष्य को अनंत किया। साधु भी हुआ अनंत बैर, त्यागी हुआ हजारों बार, उसमें कुछ है नहीं। स्त्री का त्यागी हुआ, राज का त्यागी हुआ, व्यापार धंधा दुकान छोड़ दिया, बाबा हो गया, पर उसमें कुछ है नहीं। अंदर में आनंद कंद प्रभु है, उसका जब लग अनुभव सत्कार स्वीकार, सत्कार स्वीकार, अंतर का आनंद का अनुभव न हो तब लग जन्म मरण उसका मिटता नहीं है। 84 योनि में अवतरते अनंत भैर, 84 लाख योनि है, एक एक योनि उत्पत्ति स्थान में अनंत भैर उपजे है। अनंत काल है, अनादि है, आत्मा के पहले से आदि है। हम अनंत काल में है, कोई दिन नहीं था ऐसा आत्मा है नहीं, है, वर्तमान है, भविष्य में है, ये तो त्रिकाल रहने वाली चीज है।
तो ये चीज में आनंद ने ज्ञान भरा है, इसका अनुभव बिना, ये कहते हैं देखो परेशान किले परिभवाती परेशान, निश्चय से शुद्ध चैतन्य स्वरूप से भगवान आनंद ने ज्ञान स्वरूप से अण मिलते, मिलान नहीं होता। चैतन्य स्वरूप आनंद ने ज्ञान ये स्वभाव के साथ अण मिलते, मिलान नहीं होता। ऐसा पुण्य पाप का विकार भाव अण मिलते हैं, उसके साथ मिलान नहीं होता, भिन्न चीज है। पर किल किल निश्चय से ये परे भावा परेशान निश्चय शुद्ध चैतन्य स्वरूप से अण मिलते हैं। क्या कौन अण मिलते हैं? द्रव्य कर्म एक जड़ कर्म है, अंदर में एक कर्म है। आप पुण्य पाप भाव करते हैं तो कर्म बनते हैं, तो कर्म के कारण वाली पुण्य हो तो पैसा मिल जाए, पाप हो तो निर्जनता हो जाए, ऐसी कर्म चीज है। बुद्धि भी ना हो, बारदान खाली, बारदान समझे, बुद्धि न हो बहुत खाली तो अभी 5-5 लाख पैदा करते हैं, क्योंकि पूर्व का पुण्य रत कर्म पड़ा हो, उसके कारण से मिले, वो कोई बुद्धि से प्रयत्न से मिलता नहीं। तो है क्या लाभ में नहीं पड़े, एमा तो पुरुषार्थ करो, धूल में पुरुषार्थ काम नहीं कर, वो तो कहा नहीं, हम तो बहुत देखा है ना। बुद्धि का बारदान जैसा 5-5 लाख पैदा करते महीने, बारदान समझे, खाली थोथा जैसा। और बुद्धि का खा, बहुत बुद्धि वाला है तो 2000 पैदा करना में पसीना उतरते एक बुद्धि का सुबह नहीं केम ऐसा प्रयत्न होशियारी करे पैसा मिले एम है कि नहीं? नहीं एक में धंधा में तो धूल में धंधा में नहीं है क्या? कितना देखा है, कितना काई माल महीने 5 लाख पैदाश, 10 लाख की पैदाश। अरे अभी है ना अरबस्तान में डॉक्टर, एक अरबस्तान में देश है, तो देश छोटा है पर उसमें पेट्रोल बहुत निकला, पेट्रोल इतना कुआ निकला है, देश छोटा है, तो 1 कला की 1.5 करोड़ की उपज है। क्या आमदनी? 1 कला की 1.5 करोड़ की आमदनी है, अभी है अरबस्तान में। हम तो सब सुना है ना, इससे भी एक देश दूसरा है अरबस्तान में आगे, कि एक उसको भी इतना पेट्रोल निकला है, इतनी निकली है, देश छोटा है पर कुआं बहुत निकला, तो एक दिन में 1 अरब की पैदाश है आमदनी। क्या क्या एक दिन में 1 अरब की आमदनी है तो मांस खानारा हल्का मांस, पर पूर्व का पुण्य है तो मिले, पीछे तो नर के जाने वाला है ये तो मर के तो नर के जाएगा नीचे, पर पूर्व का पुण्य के कारण से 1 दिन की अरब की पैदा आमदनी है। उसमें क्या हुआ, वो कोई बुद्धि का फल है, वो कोई बुद्धि वाला बहुत है। 2000 पैदा करना हो मासिक तो भी बहुत मेहनत करना पड़े, नौकरी करे, सेवा करे न, ऐसा माखन चौपड़े मक्खन हिटे बढ़िया बड़ा मानस का वखान करे, वखान मान 2000 पैदा करे, तो उसमें कोई बुद्धि का फल ये है नहीं, ये तो पूर्व का पुण्य पाप कर्म पड़ा हो उसका वो फल है। तो ये द्रव्य कर्म कहते हैं उसको, द्रव्य कर्म जड़ कर्म, उसके कारण अनुकूल प्रतिकूल मिलता है, तो द्रव्य कर्म भी आत्मा से भिन्न है। समझ में आया? द्रव्य कर्म एक बात आया, भाव कर्म। भाव कर्म क्या शब्द है डॉक्टर? भाव कर्म दया दान व्रत भक्ति तप भगवान स्मरण, ये सब भाव है, राग है। ये राग को यहाँ भाव कर्म मलिन कहते हैं वृत्ति का उठान है। भगवान ज्ञान स्वरूप है, उसमें भी नाम स्मरण भगवान 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 ईश्वर ईश्वर के नमो जनतानंग नमो सिद्धानंग नमो, ऐसा करना
वो एक विकल्प है, वृत्तियां है, राग है, विकार है, भाव कर्म है, मलिन है, जहर है। जेनी बात है प्रभु, हाँ तो अलौकिक बात है। ये भाव कर्म भी आत्मा से भिन्न है। आत्मा तो चैतन्य आनंद स्वरूप भगवान आत्मा, उससे भाव कर्म, हिंसा, झूठों, चोरी, विषय, भोग, वासना, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, ये विकार है, भाव कर्म है, ये विकृत भाव है, भिन्न है। और दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा और शुभ भाव है, वो भी राग है, वो भी मलिन है, वो भी आत्मा का स्वभाव से भिन्न है। डॉक्टर सेवा करते हैं बधाने ऑनरीन फोनरीन फलानी, ये बધી बाब राग है कहते। जो कि नौकरी तो करते हैं ऑनरी थोड़ी, डॉक्टर उसमें मोटी अस्पताल में जाए 2 मास 4 मास, શું કે પછી આપણા ડોક્ટર પણ ચલે એટલે પેલી ત્યાં 2-4 મહિના હોસ્પિટલ મફત કામ કરે, મફત સમજે ને, પૈસા લીધા વિના વિશે अपनी दुकान चले માટે કરતો હોય। આ માને નો ઓનરી है પણ अंदर आशा है। ये सब राग ने विकार भाव है। शुद्ध कर्म करने से आत्मा का रास्ता साफ होता है? बिल्कुल नहीं, नुकसान करते हैं। ये बात चलती है, ये बात चलती है। शुभ कर्म का भाव कर्म कहते हैं। ये शुभ कर्म जितना है विकल्प की वृत्तियां है, राग है, ये आत्मा का स्वरूप नहीं, नुकसान करते हैं। यही बात है। आखिर दुनिया ने हमको जानता है ना, हमको आप बात भिन्न तो बनती है दुनिया से। दुनिया में सर क्या काम करना पड़ता है? करना पुण्य में कुछ नहीं, अंदर पुण्य से भिन्न होकर अंदर आत्मा का आनंद का ज्ञान का अनुभव करना हो, बाकी सब मिथ्या है, ब्रह्म है। संसार कैसे चलेगा? ये संसार नहीं, संसार क्या चलाना है? संसार का तो नाश करना है। तो संसार का तो नाश करना है। संसरणम इति संसार, संसार का तो क्या है? संसरणम इति संसार। भगवान आनंद ने ज्ञान स्वरूप है, उसमें से हटकर पुण्य ने पाप का शुभ भाव करते हैं, ये सब संसार है। उसमें 4 गति मिलती है रखने का, 84 योनि मिलती है, उसमें परिभ्रमण टलते नहीं। આવી વાત ભારી આકરી है। महाराज એને कभी लिया ही नहीं, कभी सुना ही नहीं। कहा अंदर चीज क्या है, सुना ही नहीं, प्रेम से सुना ही नहीं। सुनता है पर प्रेम से सुना नहीं। हम तो अनंत काल में अनंत बेर सुना है, पर आ चीज क्या है ना, क्या राग क्या है, ऐसा भेद पर से भिन्न ऐसी बात प्रेम से सुनी नहीं। समझ में आया? बात तो ऐसी है, भगवान क्या कहेगा। दूसरा को आहार पानी देने का भाव, आहार पानी जल औषध, रोगी है तो औषध दो भाई मफत, ये सब भाव राग है, भाव कर्म है, पुण्य है, मलिन है। आत्मा अमृत स्वरूप से है, विरोध जहर है। यही बात है यहाँ। करना वो राग से भिन्न होकर अपने ज्ञान की अनुभव करना, ये बिना जन्म के संसार का अंत कभी आएगा नहीं तरण काल में उसको। हम तो सारी दुनिया दिखे हैं डॉक्टर। हाँ तो 88 वर्ष हुआ। कितना? 88। 90 के 2 कम। 90 कहते हैं ना, क्या कहते हैं? 90 में 2 कम। तुम्हारा 48 हुआ है, 88 हुआ है। और दुकान छोड़ी 65 वर्ष हुआ है। दुकान थी हमारी पालेज में, एक भरूच ने बड़ोदरा बीच में है, पालेज एक है, जहाँ दुकान थी हमारे पिताजी की। जहाँ अभी दुकान है, हम ત્યાં रहते 9 वर्ष रहे थे। 5 वर्ष दुकान चलाई थी। 70 वर्ष की उम्र में 70 से 22, 17 तुम्हारा 5 वर्ष, फिर 22 वर्ष छोड़ दिया। 22 वर्ष की उम्र दुकान छोड़ दिया है। तो अभी तो 88 हुआ। तुम तो सब देखा, आगे दुनिया देखिए।
10,000 मील तो 3 बार हिंदुस्तान में मोटर से फिरे, 10,000 मील एक बार ऐसा 3 बार हिंदुस्तान में फिरे। बड़ी मोटर है नहीं, शू के भाई मंगलवर्धन है नहीं, ये तो नाम प्रेमा कैसे नो कैसे जो यहाँ सब देखा है आ चीज दूसरी है। आया तो भगवान भाव कर्म उसको कहते हैं। हाँ, आत्मा है उसका परमार्थ है, सर्वज्ञ स्वभाव है। शांति से सुनना प्रभु, बात तो अलौकिक है, सारी दुनिया से फेरफार है। आत्मा जो अंदर है उसका स्वभाव सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ ज्ञान स्वभाव पूर्ण है। तो ऐसा सर्वज्ञ स्वभाव जिसको अंतर में अनुभव करते करते प्रकट दशा में सर्वज्ञ भाव होता है, दशा वर्तमान में स्वभाव में है, ये अनुभव करते करते जब दशा में सर्वज्ञ 3 काल 3 लोक को जानने की शक्ति की व्यक्तता प्रकट होती है, उसको सर्वज्ञ परमात्मा कहते हैं। ये सर्वज्ञ परमात्मा क्या वाणी है? इच्छा बिना ओम ध्वनि निकलती है। आत्मा अंदर सर्वज्ञ स्वरूप ही है, शक्ति स्वभाव समर्थ गुण भाव उसकी अनुभव करते करते वर्तमान दशा में, वर्तमान हालत में, वर्तमान क्या कहते हैं पर्याय, पर्याय ये नहीं समझे, हालत वर्तमान दशा, वर्तमान दशा में सर्वज्ञपना प्रकट होता है। जैसे लींडी पीपर होती है, छोटी पीपर 64 पेटी चपराई भरी है अंदर, ये बाहर आती है घुटने से, ये है वो आती है, प्राप्त की प्राप्ति है। जो घुटने से आती हो तो कौलसा और लकड़ी घुटने से आनी चाहिए, पर उसमें है ही आती है। ऐसे आत्मा में 64 नाम पूर्ण रूपियो पूर्ण सर्वज्ञ ने पूर्ण आनंद से भरा भरा प्रभु आत्मा है। भाई झीणी बात है प्रभु। ये जब अंदर ना अनुभव करके राग, ये दया दान व्रत भक्ति का राग भी जहर है, नुकसान कारक है, ऐसे भिन्न करके अपना आत्मा का अनुभव करते हैं, तब अंतर में पहले सम्यक सच दर्शन होता है। जैसी चीज है इसका दर्शन देखना प्रतीत होती है, पीछे अंतर में लीन करते 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 सर्वज्ञपना प्रकट होता है। तो ये सर्वज्ञ क्या वाणी है? सर्वज्ञ होते हैं, उसको इच्छा नहीं होती, पर ओम ध्वनि निकलती है। मुख ओम ध्वनि सुनी अर्थ गंधर्व विचारे, ओम ध्वनि ओम ऐसा आवाज निकलते हैं, इच्छा बिना। ये वाणी है, जिनी बात है। ये वाणी में आता है कि परेशान भाव, ये द्रव्य कर्म जड़ कर्म पर है, भाव कर्म पर है। शुभ कर्म कहते हैं ना, शुभ कर्म सत्कर्म, ये सब राग है। सदाचार, सदाचार तो किसको कहिए? सदाचार, सत सत आचार, सत ज्ञान में आनंद, उसका आचार ही सदाचार कहते हैं। राग ही सदाचार है नहीं। दुनिया से भिन्न चीज है सदाचार। सत भगवान ज्ञान में आनंद स्वरूप प्रभु है, ये सत है, उसका आचार आनंद में ज्ञान में रमण करना, ये सदाचार है। लौकिक सदाचार क्रिया कांड दया दान व्रत को लौकिक सदाचार कहते हैं, पर वो बंध का कारण है, संसार का कारण है। उसमें संसार मिलते हैं, भव मिलते हैं, भव का नाश उससे होता नहीं। समझ में आया? ये भाव कर्म इसको कहते हैं। करुणा, कोमलता, राग की मंदता, ये सब भाव कर्म विकार है, ये वृत्ति का उत्थान है। चैतन्य मूर्ति भगवान ज्ञान ने आनंद का कंद, उसमें वृत्ति का उत्पन्न होना, ये सब राग मैल है।
चाहे तो दया दान अनुकंपा भक्ति पूजा व्रत तप उपवास आदि करने सब वृत्तियां राग है, उसको यहाँ भाव कर्म कहते हैं। उससे भगवान भिन्न है अंदर। अरे मुश्किल जगत ने क्या अनंत काल थी रखड़ते हैं, रजलते हैं। अपनी चीज की क्या महत्ता है और चीज में कितनी शक्तियां सामर्थ्य है, उसकी प्रतीति की खबर नहीं। तो यहाँ कहते हैं भगवान आत्मा ज्ञानमय आनंदमय अतीन्द्रिय, वो इंद्रिय से राग से जानने में आता नहीं। ये तो अपना अंतर आनंद ने ज्ञान स्वभाव से, अपना स्वभाव से स्वभाव जानने में आता है, तब उसका सम्यक दर्शन नाम सत्य जैसी चीज है, उसकी प्रतीति हमें देखना कहने में आता है। पीछे स्वरूप में रमणता आनंद आनंद अतीन्द्रिय आनंद में जो अनुभव हुआ था, उसमें अतीन्द्रिय आनंद में लीनते करते 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 पर्याय वर्तमान हालत में अतीन्द्रिय आनंद का पूर्ण होना, अब उसका नाम सर्वज्ञ ने परमात्मा कहने में आता है। बात है। दूसरी बात गड़बड़ है सब। समझ में आया? ये कारण देखो नहीं, अन मिलते हैं भगवान ज्ञानानंद स्वभाव साथ हैं, इस राग को मिलान होता है नहीं, अन मिलते हैं ना। જેમ शक्कर साथे अफीन अन मिलते हैं, मिला नहीं होता, भिन्न चीज है। ऐसे भगवान आनंद ने ज्ञान स्वरूपी प्रभु, उसके साथ पुण्य परिणाम का पाप का भाव अन मिलते हैं। विकार है, भगवान अंदर अविकारी स्वरूप है। अनंत काल में कभी सुना है नहीं, किया है नहीं, ऐसे न ऐसे बाबा हो गया अनंत में, सन्यासी हुआ, साधु हुआ, नग्न हुआ, पर अंतर आत्म ज्ञान और राग का विकल्प से भिन्न चीज है। ऐसी अनुभव बिना भव का भ्रमण मिटते नहीं। डॉक्टर ऐसी बात है। हाँ, આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ। 184 કળશનો શેષ ભાગ આપણે આવતા સ્વાધ્યાયમાં લઈશું।